Hello everyone, I am Vinaya Deshpande and welcome to the show Pulse Maharashtra with me. I am the Maharashtra Chief of Bureau of the Hindu, and every week on Saturday, I am going to take you through the topmost stories from the state of Maharashtra, and we will deep dive together in the most important story with some exclusive interviews, some ground reports and the voices you need to hear to keep you on top of the curve when it comes to the state of Maharashtra. The news that made it to headlines this week were the Waqf bill, where while the parliament debated on the several facets of the Waqf bill, a different kind of politics played out in Maharashtra, where both the government as well as the opposition targeted each other over Hindutva. That was the biggest story of the state. The second story was the unfortunate demise of the yesteryear actor Manoj Kumar, who passed away at a city hospital later this week. In Pune, a 7-month-old pregnant woman lost her life allegedly due to the negligence of a hospital. The family claims that the hospital refused to admit her at a key period when she was in pain, leading to her death. The state government has taken a strict view of the entire case. The Chief Minister of Maharashtra has ordered a high-level inquiry into the matter. While speaking to us in an exclusive conversation, which you will hear in just a few minutes from now, Deputy Chief Minister Eknath Shinde called it one of the most unfortunate cases in the state and said that the state government will take the strictest action against those who are guilty in the case. We also had the Kunal Kamra issue raging this week on as well, where even after 3 summons by the Mumbai police, the stand-up comedian failed to appear in front of the Mumbai police after he had received a relief from the Madras High Court. So these were the top stories from the state, but let's take you to the story that made it to the headlines throughout the week and did not leave the top chart. That was the Waqf bill story. Now, interestingly, it was here in Maharashtra that you saw that a stage was set with Sena versus Sena battle that panned out, while the Shiv Sena led by Eknath Shinde targeted the Shiv Sena led by Uddhav Thackeray on the issue of Hindutva, claiming that the party had only taken up the appeasement politics route of the Congress, following the Congress, leaving behind the ideology of Balasaheb Thackeray, and thereby it would not vote in favor of the Waqf bill. The Shiv Sena UBT, on the other hand, used the same Hindutva plank to target its opposition, both the Shiv Sena led by Eknath Shinde as well as the BJP. Sanjay Raut called the ruling parties the parties which are trying to turn India into a Hindutvavadi Pakistan. They also took a jibe against the Shiv Sena and the BJP, claiming that their appeasement of Muslims was worse than what Jinnah could be blamed for. We have taken view of this entire debate with exclusive conversations with both the Chief Minister as well as the Deputy Chief Minister in Maharashtra. So here we will now tune in to this conversation I had with Devendra Fadnavis, where he categorically stated, just days after challenging Uddhav Thackeray on the Hindutva plank, that the Waqf bill had nothing to do with Hindutva and that it was only in furtherance with the constitution of the country and with the ideas of a democratic republic of India. Whereas Eknath Shinde, who is the Deputy Chief Minister of Maharashtra, also said that Uddhav Thackeray had left Hindutva, had left Balasaheb Thackeray's ideology, and that is why he did not vote for
in favor of Waqf Bill. Let's tune in to these exclusive conversations. The Waqf Amendment Bill has been cleared by the Parliament now. We have seen a lot of voices. Most prominent voices coming in from Maharashtra were those of the Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister Eknath Shinde. Let's start with the Chief Minister Devendra Fadnavis, who is with the Hindu at present for the first show of Pulse Maharashtra. Sir, thank you so much for your precious time today. Waqf Bill has been passed by the Parliament. Firstly, what is the impact that it will have on Maharashtra? See, it's not just about Maharashtra, it is about the entire country. The Waqf Act in its original role was very draconian. It was not well thought of. In fact, it was only made for appeasement. And that is why sweeping powers were given to the Waqf. And we have seen that scores of actually cases went to the Supreme Court. And time and again, Supreme Court has given several decisions wherein they have said that these provisions are badly made, these provisions are misutilized, and so on and so forth. Many things were said by the Supreme Court. So it was right time, opportune time that the Waqf Act is amended and the provisions which are practical and which are constitutional should be introduced in the Act. I would just like to tell you that how does it become constitutional that you have no power to appeal? In the original Act, there was no power for appeal. I mean, somebody says that tomorrow my house is a Waqf property and they just entered into the Waqf register and it becomes their property and I have nothing to say. So all these provisions which were absolutely draconian are changed. Now it will be absolutely logical and some questions were raised in the... So in fact, my question to you is, you are saying that there was, it's only constitutional now that it has been amended. But the biggest criticism that is being leveled against you, specifically by the opposition parties in Maharashtra, the Shiv Sena UBT has said this is a technique to grab land. Now you will grab the land of Waqf board. How do you look at this criticism? First of all, entire Waqf land is grabbed by the Congressians in, if you look at the period from 2000 to 2014 in Maharashtra. There was a huge scam. In fact, all the leaders, big leaders of Congress were involved. I made a committee and that committee has given a report that the committee was headed by a judge, and it has given a report that yes, it was a Waqf land which was grabbed by them. So how, I mean... Are you saying that the state government will now take action on that report that has been submitted? Yes, we will take action. And this entire thing happened during 2000 and 2014. And if you look at the people who are involved are all big leaders, ministers of the Congress. Like who, sir? Many, I mean, I'll give you some names. Right now I don't remember because it's an old case. But all of them were the big ministers of Congress. Because I was the person who actually highlighted it in the assembly. And then a committee was made and the report came in around 2014. So now you're saying with the fresh act behind you, now that the process is almost being completed, you are seeing that the process within Maharashtra will also speed up? It has to speed up, and you see, ultimately, what is the aim of new act? The only aim is transparency. Whatever is property which is actually, let's say, in the name of Allah, they say that the Waqf is something which is in the name of Allah, should be transparent and should be used for, benefit of the people. But the community is scared that there are non-Muslim members, that this is a way of interfering with their religion. I think that has been clarified totally by Honorable Union Home Minister, and nothing remains. So you're saying that there is no concern with respect to the community aspect? Absolutely no. And I mean, since I was hearing the debates, I could hear a speech from Mr. Dubey, who is a member of parliament from Jharkhand. And he said that
in one of the Jyotirlings which is present in his constituency, the secretary of the Jyotirling committee is a Muslim and has been Muslim for many years. So how does it matter? We are secular. But so how do you look at the jibes against you, you know, Modern Jinnah, Hindu Pakistan, all these jibes that are coming to you from the opposition, how do you view them? I think it is just a frustration. It is their frustration. And it is their policy of appeasement which is making them say such things. They also know that this is a correct act. They also know that it has become constitutional. They also know that it is as per the various judgments given by the Supreme Court. But they just want to please their constituency because their policy has been appeasement. They feel that just by appeasement they will be able to win the elections. At least now they should wake up after so many defeats. They should understand that on the basis of appeasement you will never be able to win the elections. You will only be dividing the society. One last question, sir. Do you see this as a move in furtherance of Hindutva? I don't think that it's a move in furtherance of Hindutva. I think it is in the constitutional spirit of a democratic, secular Republic of India. Thank you so much for your precious time, Chief Minister Devendra Fadnavis. This was the Chief Minister speaking to The Hindu on Pulse Maharashtra. Most importantly, he has said that now the government will take action against several Congress leaders who he has said are involved in a Waqf land scam in Maharashtra. सबसे अहम मुद्दा जो इस हफ्ते चला वो था वक्फ का। हमने देखा कि वक्फ के बिल पे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, घमासान डिबेट्स चले। सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म आप पे रहा वो ये कि आपने हिंदुत्व छोड़ दिया, कि आपने जैसे हिंदू पाकिस्तान यहाँ पे जो है क्रिएट कर दिया और आप जिन्ना की याद दिलाते हैं अब विपक्ष को। तो ये जो सब आपके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम समाज के जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो बच्चे हो, स्टूडेंट हो, महिलाएं हो, इनको इस वक्त के बिल के लाने से जो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा और उनकी उन्नति होगी, डेवलपमेंट होगा। ये कई लोगों ने उसको विरोध भी किया, लेकिन उसके बावजूद ये वक्फ बिल पास हो गया है। और इसलिए मैं हमारे शिवसेना के जो सांसद हैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बाला साहेब ठाकरे जी की भूमिका वहाँ पर 100% अदा कर दी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी हिंदुत्व के विचारधारा वाले नेता थे और हिंदुत्व से कभी भी उन्होंने प्रताड़ना भी नहीं की, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया। उन्हीं के विचार को हम आगे बढ़ा रहे और इसलिए जो इस वक्फ बोर्ड पर उन्होंने कभी भी हिंदुत्व को आगे बढ़ाया, लेकिन अन्य कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, उसका द्वेष भी नहीं किया। जो देश के देशभक्त मुसलमान हो, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान हो, जो देश के प्रति वफादार हो, उनको हमेशा उन्होंने समर्थन दिया। लेकिन देश के खिलाफ, देश के विरोध में जो भी कोई भी हो, उसका विरोध किया। और इसलिए आज जो वक्फ बिल जो है वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जो जमीन, प्रॉपर्टी, जायदाद, लाखों करोड़ों एकड़ जो कुछ लोगों की जायदाद बन गई थी, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी बन गई थी, उसमें कोई अपील ही नहीं था। ये इसको किसको उंगली लगा दी, ये वक्फ की जमीन है तो वक्फ की हो गई। अभी एक हाल ही का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, लातूर में तलेगांव, अक्का गांव किसान, पूरे किसानों की जमीन को उन्होंने वक्फ के इसमें बदल दिया, बोले वक्फ की जमीन है। ऐसे कई मामले पिछले कई सालों में सामने आए
और उसमें कोई सुनवाई नहीं। फिर सामने किसान हो या कोई भी गरीब हो, उसने प्रूव करना है कि उसकी जमीन कैसे है। और इसमें प्रूव करते समय देखो कितने करप्शन के मामले सामने आ गए, करप्शन कितने बड़े पैमाने पे हो गया। और एकनाथ खड़से जब हमारे 2014 से 19 में मंत्री थे वक्फ अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने खुद कहा था कि कई प्रॉपर्टीज ये वक्फ की जायदाद जो है वो उसकी लूट हो रही है। कांग्रेस के जमाने में 123 प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई कर दिया, और अभी इस वक्फ के बिल की वजह से अपील होगा, सुनवाई होगी, कलेक्टर होगा, और कोई भी किसी भी तरह का ज्यादती नहीं कर सकता है। तो अभी इसमें ये वक्फ की जमीन इतनी बड़ी है कि किसको फायदा होता था? को आम बच्चों को होता था, मुस्लिम क्या महिलाओं को होता था? किसको होता था? कुछ मुट्ठी भर लोगों को होता था। और अभी इसमें स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, ये पूरी तरह ये समाज की उन्नति होगी। लेकिन सर फिर वक्फ और हिंदुत्व, इस पे जो महाराष्ट्र में डिबेट छिड़ा, ये उस पे मैं आता हूँ। हिंदुत्व का और वक्फ का क्या संबंध है? देखिए, अभी जिनको जो बोल रहे हैं वक्फ और हिंदुत्व का कोई संबंध नहीं है, ऐसा कुछ लोग बोले। कोई लोग बोले अभी जीना की याद आने लगी। अभी औरंगाबाद औरंगजेब फैन क्लब के लोगों को तो जीना ही दिखेगा, राहुल गांधी के साथ रोजाना रहने वालों को जीना ही दिखेगा। लेकिन ये जो बिल आया है, मैं ये कहूंगा कि उबाटा जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, मैं यही कहूंगा 2019 को उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के विचार को त्याग कर, जो वो नहीं चाहते थे उनके साथ बैठकर सत्ता हासिल कर दी, मुख्यमंत्री पद हासिल कर दिया। तब जो उन्होंने बेईमानी की थी, जो पाप किया था, उससे बड़ा पाप कल उन्होंने किया। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ये किसी धर्म, मैं पहले ही कहा है, किसी धर्म मजहब के विरोध में नहीं थे। लेकिन आज जो ये जमीन लूटने वाले लोग, जो गरीबों के खिलाफ में काम करने वाले लोग, जो जिनको साथ आज वाटा दे रही है, अगर बाला साहब ठाकरे जी रहते तो क्या ये निर्णय वो ले पाते? नहीं ले पाते। आज बाला साहब ठाकरे जी को भी मन को कितनी दर्द और वेदना होती होगी। ये ऐसे उनके जो वारस कहते हैं, उनके कहते हैं हम अनुयायी है, विचारधारा वाले हैं, ये तो उनको तो इतना दुख और तकलीफ और वेदना होती हुई। क्योंकि आज जो उबाटा के साथ भी जो लोग हैं उनको भी तकलीफ हुई है, उनको भी ये जो निर्णय नहीं पटा है, उन्होंने भी ये देखो, किसी ने जाहिर वक्तव्य किया होगा, लेकिन दिल से तो दुखी है वो लोग। और इसलिए हमारी भूमिका स्पष्ट है, हम बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसे बाला साहब ठाकरे जी देश प्रेमी, जो भी हिंदू हो मुसलमान हो, उसको कभी भी उनका द्वेष नहीं किया, उनके खिलाफ में हम उन्होंने काम नहीं किया, वैसे हम कर रहे हैं। और इसलिए आज इस समाज में, समाज जो है मुस्लिम समाज, क्या कांग्रेस ने कितने बार कहा है गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटी क्या? गरीब गरीब रह गया, अमीर अमीर बन गया। क्योंकि मुस्लिम समाज को कांग्रेस गरीबी रखना चाहता है, उनके सामने हाथ फैलाकर खड़ा रहने के लायक उनको रखना चाहता है। लेकिन मुझे बताओ कि 2014 से जब प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए, तब से कितनी योजनाएं शुरू हुई। लखपति दीदी होगी, जनधन खाता वो खोल दिया, ये किसानों की होगी, हमारी लाडली बहन योजना हो गई। लेकिन इसमें कोई भी हिंदू, सिर्फ हिंदू है क्या? उसमें सभी जाति पाति के लोग फायदा उठा रहे हैं। तो गरीबी रेखा के ऊपर 35 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऊपर लिया, उसमें क्या सिर्फ हिंदू है? लेकिन फिर हिंदुत्व का और वक्फ का संबंध है क्या?
हिंदुत्व और जिनको कुछ समझता ही नहीं, क्या निर्णय ले, क्या निर्णय ले, कैसे निर्णय लिए, ऐसी क्या कहते हैं उसको कि जो कंफ्यूज, संभ्रम में जो कंफ्यूज हुए, जिस पार्टी के नेता कंफ्यूज होते हैं, संभ्रम में आते हैं, उस पार्टी का फ्यूचर क्या है? हमारी भूमिका स्पष्ट है, हम हिंदुत्ववादी पार्टी और बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली पार्टी है, और हम कोई भी जब ऐसा किसी भी समाज, किसी भी मजहब की बात आएगी तो उसके समाज के उन्नति के लिए जो भी कोई भी कदम उठाएगा उसके साथ में हम रहेंगे। ये तो पॉलिटिक्स है, ना ये हिंदू के है ना मुसलमान के है। देखिए, एक बार जब मुसलमानों के विकास की बात आई थी पार्लियामेंट में, इन्होंने वॉकआउट किया था। मतलब मैदान छोड़कर भाग जाना, जब वोट चाहिए तो वोट लेना। अब हिंदू और मुसलमान दोनों को ही समझ गया है, ये किसी के भी नहीं, ये खुद के स्वार्थ और वोट की लालच में ये कांग्रेस जो करती है वो ये करने लगे। तो क्या आप कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुत्व छोड़ा, ना कि आप? बिल्कुल, हिंदुत्व उन्होंने पूरी तरह छोड़ दिया है, बाला साहब ठाकरे जी के विचार को छोड़ दिया है। अब वो कंफ्यूज हो गए, क्या करे, क्या निर्णय ले, कैसे करे, उनको कुछ सोच ही नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने जो गलत 2019 में किया, इस लोकसभा के चुनाव में फेक नैरेटिव कर कई विशेष समुदाय के वोटों को बटोरा। लेकिन सर, अब उसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस इतने सालों से नहीं हुए, आपकी सरकार पे भी यही आरोप लग रहा है कि कुछ तो सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई करे, इलेक्शन जल्द से जल्द ले। जनप्रतिनिधि के बिना कॉर्पोरेशन मुंबई जैसे, महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ एफिडेविट दिया है, कोर्ट को विनती की है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। कोर्ट को तो हम सलाह तो नहीं दे सकते, उनके जैसे इतने बड़े नहीं है हम, वो तो सलाह भी देते हैं, टीका टिप्पणी भी करते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तब मैं और देवेंद्र जी ने पहला काम जो क्या किया होगा, कमिश्नर को बुलाकर मुंबई के सारे रास्ते सीमेंट कंक्रीट के होने चाहिए, गड्ढे मुक्त मुंबई चाहिए। क्यों नहीं किया 15 साल उन्होंने? क्यों डांबर के रास्ते बनाए, हर साल रिपेयरिंग में 3-4 हजार करोड़ रुपए डाले, क्यों? लेकिन अब तो मुंबई पूरी खुद ही पड़ी है, खुद ही पड़े तो, अरे बाबा अभी तो देखो 1.5-2 साल में पूरी मुंबई चकाचक, एक भी खड्डा नहीं दिखेगा आपको, पॉटहोल फ्री मुंबई। सर, क्योंकि ये शो महाराष्ट्र का भी है, मैं आपसे 2 से 3 सवाल महाराष्ट्र के बारे में पूछने वाली हूँ। पुणे में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जहाँ पे एक 7 मंथ प्रेग्नेंट महिला थी जिनको जान गंवानी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे लोगों का आरोप है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट नहीं किया। तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य के लिए ये निंदनीय घटना है? बिल्कुल, पुणे जैसे शहर में ऐसा कुछ हो, या कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन पुणे में ऐसा घटा है। बिल्कुल, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारी एक महिला भगिनी का उनकी डेथ हुई है, ये तो चिंता की बात है, और इस पे मुख्यमंत्री जी ने भी बयान किया है, एक हाई लेवल कमेटी अपॉइंट की हुई है, इसमें जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। क्या सरकार इसमें सख्ती बरतेगी? बिल्कुल सख्ती बरतेगी, क्योंकि एक जान गई है, किसी की जान गई है, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की बहन हो, तो ये सरकार संवेदनशील है, तो निश्चित रूप से इस पर कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सर, बीड़ का जो मुद्दा है वो अभी भी न्यूज में है। धनंजय देशमुख जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि इसमें और सीरियसली देखना चाहिए, सरकार ने जांच करनी चाहिए। वहां पे मस्जिद के जो लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि काफी पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस वहां पे बढ़ गया है। तो क्या राज्य सरकार इसके बारे में कुछ करेगी कि लोगों को ऐसा लगे कि हम सुशासन में रह रहे हैं? देखिए, धनंजय देशमुख, संतोष देशमुख के भाई धनंजय, उससे भी मैं बात कर चुका हूँ, और संतोष देशमुख की हत्या ये बहुत ही दुर्दैवी घटना है।
महाराष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है और इस पे जितने भी गुनाहगार हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो गई है। ये केस फास्ट ट्रैक पर चलेगी और फास्ट ट्रैक पर चलाकर जो दोषी है सभी की आवाज़ है, उनके परिवार की भी आवाज़ है कि मांग है कि इनको फांसी होनी चाहिए। ये जो समाज में जो ऐसे दरिंदे जो लोग हैं इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है, सबक सिखाने जैसी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इसलिए सरकार पूरी ताकत से ये केस के पीछे है और जितने भी लोग हैं उनको फांसी हो ऐसी कोशिश सरकार की होगी। न्याय मिले परिवार को न्याय मिले, दोबारा ऐसी घटना ना हो, किसी की जान नहीं चली जाए, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र की भी छवि काफी खराब हुई। बिल्कुल ये देखिए कहीं पर भी ऐसी दुर्घटना हो तो ये हमारे राज्य के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य है, प्रगत राज्य है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है, सरकार की। और इस घटना को लेकर सरकार भी गंभीर है। सर एक आखिरी सवाल और वो ये है कि कुणाल कामरा ने एक स्टैंड अप शो किया जिसके ऊपर काफी आक्रामक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली और क्रिटिसिज्म ये बना कि आपके ऊपर अगर कोई कॉमेडी करता है तो पक्ष अच्छे से नहीं लेगा या वायलेंस होगा। तो ये जो प्रतिमा बनी इसको आप कैसे देखते? नहीं देखिए, मैं तो बहुत शांतता प्रिय हूँ। मैं कहता हूँ सबको मुझे शांति से काम करने दो, मैं किसी को छेड़ता नहीं हूँ, मैं अपना काम करते रहता हूँ। कितने आरोप लगाते रुपये पर, मैं आरोप का उत्तर आरोप से नहीं देता हूँ, काम से देता हूँ। इसलिए तो इतनी बड़ी जीत हासिल होगी, इतनी मेरी लोकप्रियता जो है, लोगों का सीएम, जनता का सीएम। आप ही के पक्ष के लोगों ने जाके स्टूडियो में तोड़फोड़ की। देखिए इसका समर्थन मैं नहीं करूंगा, लेकिन लोकशाही में अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के नाम पर किसी को बदनाम करना, किसी की बेइज्जती करना, ये भी तो ठीक नहीं है। तो हर एक जो भी व्यक्ति है उसने लोकशाही में भी और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का स्वैराचार या गैर फायदा नहीं लेना चाहिए। हक तो सबको है। With this, it's a wrap on this week's Pulse Maharashtra with Vinaya Deshpande. We will catch up next week again at the same time with more news and perspective from the state of Maharashtra. Thank you for watching.